Hello students, today we will discuss data file handling in Python. It is one of the topics in your class 12th CS syllabus. So, in today's lecture, what are the main objectives, what we are going to study in this lecture? First is the meaning of a file, why do we need a file, types of file, different modes for opening different types of files, how to open files and how to close the files. Clear? So let's start. First of all, we have to discuss what is a file. फाइल होती क्या है? अपने कंप्यूटर्स में आपने फाइल्स यूज़ की हुई हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट. व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ दैट फाइल? आप क्यों बनाते हैं फाइल्स? बेसिकली फाइल हम बनाते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए. तो फाइल है क्या? अ फाइल इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स and files are used to store data for later use and also for permanent storage. Clear? डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए और इन केस फ्यूचर में अगर हमें ज़रूरत है तो ताकि हम डेटा को यूज़ कर सकें तभी हम उसको फाइल्स में स्टोर करके रख लेते हैं. क्लियर? सो वाई डू वी नीड अ फाइल? फाइल्स की हमें ज़रूरत क्यों है? हम वैसे भी तो कंप्यूटर्स पे काम करते ही हैं. So during execution of program, we take some inputs, make some calculations and print the result. But as soon as the program execution is over, we are not able to access that data again because it was stored in primary memory. So to store data permanently, we use files. This data is stored in secondary memory so that we can access and use that data anytime again. The moment you are working on computer, that data it is stored in RAM, in primary storage, in temporary memory. But if you want to use that data in future, then you have to store it permanently. So that's why we need files. Clear? Next is in data file handling, what we have to do? We have to open the file, then process the data, then close the file. These are the main operations that we are going to discuss in our future slides. So first we discuss types of files. Files कितने types की होती हैं आपकी? There are mainly 3 types of files used in Python. Text file, binary file and CSV file. Basically there are 2 types, text file and binary file, but we have also kept one more type, that is CSV file. But CSV file के अंदर भी आपका टेक्सचुअल डेटा ही होता है जैसे आप एक्सेल में स्टोर करते हैं, बट CSV इट इज़ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ फाइल. क्लियर? तो हमने इसको इस टाइप्स के अंदर ही एक टाइप में मेंशन कर दिया है. क्लियर? वन बाय वन इसको अभी हम डिस्कस करेंगे. टेक्स्ट फाइल. टेक्स्ट फाइल क्या होती है? A text file stores information in ASCII or Unicode characters. A text file needs to be translated into binary before processing. In a text file, each line of text is terminated by a special character known as EOL or end of line character. टेक्स्ट फाइल के अंदर आपका सारा टेक्सचुअल डेटा होता है. क्लियर? और टेक्स्ट फाइल क्योंकि आपकी ASCII और यूनिकोड करेक्टर्स मीन्स दैट इज़ इन हाई लेवल लैंग्वेज, द लैंग्वेज दैट इज़ अंडरस्टूड बाय द दैट अ यूज़र अंडरस्टैंड्स, उसमें होती है. बट कंप्यूटर में जब उसको हम प्रोसेस करते हैं दैट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी बिकॉज अ कंप्यूटर इट अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज. सो टेक्स्ट फाइल को प्रोसेस करने के लिए फर्स्ट इट इज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्मेट. नेक्स्ट, टेक्स्ट फाइल के अंदर ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट, आफ्टर एवरी लाइन देयर इज EOL करेक्टर. क्लियर? तो स्पेशल करेक्टर होता है दैट इज EOL. दिस इज अ सिंबल ऑफ दिस टेक्स्ट फाइल. एक्सटेंशन क्या होती है? .txt. जैसे नोटपैड में हम फाइल बनाते हैं दैट इज टेक्स्ट फाइल.
Next is your binary file. A binary file contains information in the same format in which the information is held in memory. Binary अब नेम से ही हमें क्लियर हो रहा है, मीन्स एनी फाइल विच इज़ इन बाइनरी फॉर्मेट. तो इसके अंदर वही इंफॉर्मेशन होती है जो हम जैसे आपकी बाइनरी फॉर्मेट में होती है, मीन्स 0101 की फॉर्म में. No translation is required in case of a binary file because the binary file, it is already in binary format, so no translation, no conversion is required. There is no delimiter for a line. टेक्स्ट फाइल के केस में जैसे आपका देर इज़ एन EOL करेक्टर आफ्टर एवरी लाइन, बट इन केस ऑफ बाइनरी फाइल देर इज़ नो डिलिमिटर एट द एंड ऑफ द लाइन. Faster in execution as compared to text file. Faster, why it is faster? Because no conversion is required here. It is already in binary format. Clear? Next इसमें है आपकी CSV. इसको भी हमने एक टाइप के अंदर मेंशन कर दिया यहाँ पे. CSV फाइल दैट इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज. कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल मीन्स इसके अंदर जो डेटा है आपका दैट इज इन that data it is represented by separated by commas. A CSV file stores tabular data in plain text. सेम जैसे टेक्सचुअल फाइल में डेटा होता है आपका, यूनिकोड करेक्टर्स या ASCII करेक्टर्स आप यूज़ करते हो, उसी टाइप से डेटा है. बट CSV फाइल बेसिकली हम किस लिए यूज़ करते हैं? जो टेबुलर डेटा है उसको स्टोर करने के लिए. ईच लाइन ऑफ द फाइल इज़ अ डेटा रिकॉर्ड. टेबुलर डेटा के अंदर आपकी क्या होते हैं? रोज एंड कॉलम्स. सो एवरी डेटा ईच लाइन ऑफ फाइल इज़ अ डेटा रिकॉर्ड. मीन्स आपकी रोज है इज़ अ डेटा रिकॉर्ड. जैसे टेबल्स के अंदर होता है आपका एवरी रो दैट इज़ अ रिकॉर्ड, दैट इज़ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट वन एंटिटी. क्लियर? Each record consists of one or more fields separated by commas. In that record, every field is separated by commas. जैसे सपोज अगर हमारा टेबल है नेम क्लास रोल नंबर, तो नेम देन कॉमा देन क्लास देन कॉमा देन रोल नंबर. क्लियर? ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस मोड्स फॉर ओपनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स. ये बेसिकली आपका टेक्स्ट और बाइनरी फाइल्स के लिए यूज़ हो रहा है. क्लियर? CSV फाइल में भी हम मोड इसी टाइप से यूज़ करते हैं जो हम टेक्स्ट फाइल में यूज़ कर रहे हैं. तो इसमें यहाँ पे देखिए सबसे पहले आर मोड जो है आपका, ये अब सिंटेक्स में हम डिस्कस करेंगे. व्हेन वी आर ओपनिंग द फाइल को जब हम ओपन कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें मोड स्पेसिफाई करना होता है कि वो फाइल आप किस वे में यूज़ करना चाहते हैं. ये आपको बताना पड़ेगा कि आपने फ़ाइल किस वे में यूज़ करनी है. यू हैव टू ओनली रीड द डेटा और यू हैव टू ओनली राइट द डेटा, या आप दोनों ही ऑपरेशंस करना चाहते हैं उसके ऊपर. क्लियर? तो फर्स्ट इसमें मोड है आपका दैट इज़ आर मीन्स opens a text file for reading only. The file pointer is placed at the beginning of the file. This is the default mode for opening a file. R जब हमने मेंशन किया है किसी भी फाइल में, ये क्या करेगा? आपका टेक्स्ट फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करेगा. यू कैन रीड द डेटा फ्रॉम दैट फाइल. फाइल पॉइंटर इज प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल. रीडिंग आपकी कहाँ से स्टार्ट होगी? फ्रॉम द स्टार्टिंग. सबसे फर्स्ट कैरेक्टर जो है आपका फाइल का, वहाँ पे आपका पॉइंटर होगा, वहीं से रीडिंग स्टार्ट होगी. दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट मोड. डिफ़ॉल्ट मोड मीन्स अगर आपने मोड स्पेसिफाई नहीं किया है वाइल ओपनिंग द फाइल, तो बाय डिफ़ॉल्ट किस में होगा? वो रीडिंग मोड के अंदर. क्लियर? अब यहाँ पे नेक्स्ट है आपका RB. अब यहाँ पे जितने भी मोड्स हैं जहाँ पे हमने B मेंशन किया है जिसमें मोड में, मीन्स दैट इज़ इन बाइनरी फॉर्मेट. जब हम बाइनरी फाइल को रीड या राइट करेंगे तो उस केस में हमें ये जो यहाँ पे भी B मेंशन है वो मोड यूज़ करना है. तो वन बाय वन देखते हैं इसको हम क्या क्या है इसमें. देन RB.
opens a file for reading only in binary format. अब यहाँ पे क्या है, ये फाइल को ओपन करेगा रीडिंग मोड में, बट कौन सी फाइल को, बाइनरी फाइल को. फर्स्ट में हमने सिंपल आर यूज़ किया था, तो यहाँ पे किस फाइल के साथ हम डील कर रहे थे, टेक्स्ट फाइल के साथ. यहाँ पे आर बी है, इट मीन्स वी आर ओपनिंग द बाइनरी फाइल इन फॉर रीडिंग पर्पस. सेम है आपका, फाइल पॉइंटर इज प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल. फाइल पॉइंटर कहाँ होगा आपका, बिगनिंग में. देन इज आर प्लस. आर प्लस मीन्स इफ़ यू वांट टू ओपन अ फाइल इन बोथ रीडिंग एज वेल एज राइटिंग. हमें रीडिंग भी करनी है उस फाइल से और राइटिंग भी करनी है उसमें, तो हम क्या यूज़ करेंगे, आर प्लस. क्लियर. नेक्स्ट इज आर बी प्लस. Similarly, reading, writing, both you want to perform both the operations in binary file, then you will specify RB plus in mode. Clear. Next है इसके अंदर W. W that is for writing. Opens a file for writing purpose only. अब W में क्या है, it overwrites the file if the file exists. If the file doesn't exist, then creates a file for writing. W मोड में अगर आप फाइल को ओपन कर रहे हो, तो अगर आपकी फ़ाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो उसको वो ओवरराइट कर देगा. लेकिन अगर फाइल नहीं है तो वो एक नई फाइल क्रिएट कर देगा उस नेम से जो आपने स्पेसिफाई किया है फॉर राइटिंग पर्पस. क्लियर. अब इसमें ये चीज़ देखनी है कि जब हम रीडिंग मोड में किसी भी फाइल को ओपन कर रहे हैं तो दैट मस्ट बी क्रिएटेड प्रायर टू इट्स यूज़. क्लियर. बट राइटिंग मोड में जब आपने W मेंशन किया है तो इस केस में फ़ाइल अगर नहीं भी है आपके डेस्क पे तो उसको वो क्रिएट कर देगा. बट रीडिंग मोड में आपकी फ़ाइल पहले से होनी चाहिए, तभी हम उस फाइल को रीड कर सकते हैं. देन इज WB. WB अगेन B इज़ देयर. इट मीन्स व्हेन वी आर ओपनिंग अ फाइल फॉर राइटिंग पर्पस बट इन बाइनरी फॉर्मेट. क्लियर. ये सेम है आपका W कि जैसा अगर आपकी फ़ाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो उसको वो ओवरराइट कर देगा, अगर नहीं है देन इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल. क्लियर. देन W प्लस, जस्ट लाइक R प्लस, W प्लस इज देयर. W प्लस मीन्स रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए अगर आपने फ़ाइल को ओपन करना है, दोनों ही ऑपरेशंस करनी है एक ही फाइल पे, तब हम W प्लस यूज़ कर सकते हैं. क्लियर. इसमें R प्लस में और W प्लस में क्या है कि यहाँ पे फाइल सेम जैसे राइटिंग मोड के लिए जब हम ओपन करते हैं, अगर फाइल एग्जिस्टिंग है तो उसको वो ओवरराइट कर देगा, अदरवाइज आपकी न्यू फाइल क्रिएट कर देगा. क्लियर. देन WB प्लस. अब जो बाइनरी फाइल है हमारी, बाइनरी फॉर्मेट में है फाइल, उसको अगर रीडिंग और राइटिंग दोनों पर्पज़ के लिए आपने ओपन करना है तो हम WB प्लस यूज़ करेंगे. देन दिस A it will opens the file in append mode. ये यहाँ पे स्मॉल a है. opens a file in writing mode for appending data at the end of existing data. अब जैसे W मोड में आपने देखा, अगर आप फाइल को W मोड में ओपन कर रहे हैं फॉर राइटिंग ओनली, तो वो क्या कर रहा है, इट विल ओवरराइट द एग्जिस्टिंग डेटा. क्लियर. बट इफ़ यू आर ओपनिंग द फाइल इन append mode, it will keep that data along with the new data. जो ऑलरेडी डेटा है आपका, उसी के एंड में आपका नया डेटा ऐड हो जाएगा. यहाँ पे ओवर राइटिंग नहीं करेगा वो. क्लियर. तो A किस लिए यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर अपेंड मोड. देन AB क्या है, दिस इज ऑल्सो अपेंड मोड बट इन केस ऑफ बाइनरी फाइल्स. क्लियर. तो दीज आर द मोड्स फॉर ओपनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल. ओपन मेथड के अंदर इसको हम यूज़ करेंगे, अभी हम आगे देखेंगे इसमें. क्लियर. तो ये आपने ध्यान रखनी है मोड्स. नेक्स्ट इसमें हम चलते हैं ओपनिंग फाइल्स. फाइल्स को आपने ओपन कैसे करना है. जब भी हम कोई भी काम स्टार्ट करेंगे, प्रोग्राम हम यूज़ कर रहे हैं या हमने किसी फाइल को यूज़ करना है, तो फर्स्ट स्टेप इज़ ओपनिंग द फाइल. क्लियर. Before performing any operation on file, the first thing we have to do is to open the file. It can be done by using
ओपन फंक्शन, तो इसके लिए हम बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे, दैट इज़ ओपन फंक्शन। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स में देखिए फाइल ऑब्जेक्ट नेम, अब यहाँ पे हमें एक फाइल हैंडलर यूज़ करना है, तो दैट इज़ फाइल ऑब्जेक्ट नेम। कोई भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, देन ओपन मेथड यूज़ किया हमने, और यहाँ पे आर्गुमेंट हम क्या पास कर रहे हैं, 2 आर्गुमेंट्स वी हैव टू पास। फर्स्ट इज़ फाइल नेम, जस्ट फाइल को आपने ओपन करना है, वो नेम आप मेंशन करोगे, ये उसका पूरा पाथ ऑफ दैट फाइल। देन मोड, मोड मीन्स आपने किस टाइप का ऑपरेशन करना है, यू वांट टू रीड, राइट और बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन, सो यहाँ पे आप वो मोड मेंशन करोगे। नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल देखिए। अब एग्जाम्पल में देखो 3 एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं, किसी भी फॉर्मेट में आप यूज़ कर सकते हो, क्लियर। बट ओपन मेथड ही यूज़ कर रहे हैं हम, बट इसमें फाइल का पाथ हमने कैसे दिया है वो डिफरेंट वेज हैं इसके अंदर। फर्स्ट इज दिस फाइल वन क्या है आपका, दिस इज ऑल्सो नोन एज फाइल हैंडलर। ओपन मेथड, फाइल है हमारी data.txt, और उसके बाद आपने मोड दिए, जैसे आर मेंशन किया यहाँ पे, इट मीन्स वी हैव टू ओपन दिस फाइल, वी वांट टू ओपन दिस फाइल data.txt इन रीडिंग मोड। सिमिलरली अगर data.txt आपकी कहीं और किसी ड्राइव में एग्जिस्ट कर रही है, तो उसका पूरा पाथ आप यहाँ मेंशन करोगे ओपन मेथड के अंदर पूरा, क्लियर। देन मोड, अब यहाँ पे देखो हमने डबल स्लैश यूज़ किया है, क्लियर। डबल स्लैश मीन्स इट विल नॉट टेक एनी अदर मीनिंग ऑफ दिस एस्केप सीक्वेंस। सिमिलरली आर, अगर आप डबल स्लैश यूज़ नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे आर यूज़ करोगे स्टार्टिंग में, और फिर आप सिंगल स्लैश के साथ ही एज इट इज़ जैसे हम पाथ मेंशन करते हैं वैसे आप यूज़ कर सकते हो, क्लियर। ठीक, तो उसको वो जिस भी फॉर्मेट में आपने दिया है उसको एज इट इज़ वो ले लेगा, किसी एस्केप सीक्वेंस को स्लैश एन या स्लैश टी उस मीनिंग में यूज़ नहीं करेगा। तो नेक्स्ट इसमें ये हो गया हमारा ओपनिंग फाइल्स, आपने फाइल्स को ओपन कैसे करना है। नेक्स्ट इज क्लोजिंग फाइल्स। आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल द ऑपरेशंस ऑन अ फाइल वी हैव टू क्लोज द फाइल। इट कैन बी डन बाय यूजिंग क्लोज फंक्शन। फाइल को हमें क्लोज कैसे करना है, बाय यूजिंग अ सिंपल फंक्शन दैट इज क्लोज। जैसे ओपन करने के लिए हमने ओपन फंक्शन यूज़ किया, तो फाइल को क्लोज करने के लिए हम क्लोज फंक्शन यूज़ करेंगे। इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल है, फाइल ऑब्जेक्ट नेम डॉट क्लोज। तो ओपन करते वक्त जैसे हमने फाइल हैंडलर यूज़ किया था एक, डॉट क्लोज, यहाँ पे कोई आर्गुमेंट आपने पास नहीं करना है। अब एग्जाम्पल जैसे फाइल 1 लिया था हमने, तो फाइल 1 डॉट क्लोज, क्लियर। तो क्लोज मेथड बहुत सिंपल है आपका, फाइल हैंडलर डॉट क्लोज मेथड, क्लियर। नेक्स्ट we will discuss here some of the functions that we will use for reading or writing data into a file. First is your read function. This function read n bytes. If no argument is passed, reads the entire file, returns the read bytes in the form of a string. अब read function क्या कर रहा है आपका, रीड के अंदर अगर ब्रैकेट में कोई आर्गुमेंट आपने पास किया है, देन इट विल रीड n नंबर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम द फाइल, क्लियर। बट इफ़ यू हैव नॉट पास्ड एनी आर्गुमेंट देन इट विल रीड ऑल द डेटा। तो डेटा यहाँ पे वो रीड कर रहा है वो किस फॉर्म में होगा आपका, स्ट्रिंग की फॉर्म में, क्लियर। यहाँ पे इसका सिंटेक्स देखते हैं, फाइल हैंडलर डॉट रीड, और यहाँ पे n मीन्स दैट इज़ ऑप्शनल। अगर आपको कुछ ही बाइट्स रीड करनी है तो हम n की वैल्यू मेंशन करेंगे, और अगर आपको सारा डेटा रीड करना है तो यहाँ पे हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, क्लियर। जैसे एग्जांपल में क्या है, डेटा इक्वल्स टू f1 डॉट रीड, और यहाँ ब्रैकेट में हमने पास किया 10, इट मीन्स दिस रीड फंक्शन इट विल रीड 10 बाइट्स फ्रॉम द फाइल, फर्स्ट 10 बाइट्स, क्लियर। दोबारा अगर इसको हम यूज़ करते हैं अगेन f1 डॉट रीड,
तो फिर कहाँ से रीडिंग स्टार्ट होगी, जो वो 10 बाइट्स रीड कर चुका है फ्रॉम द 11th बाइट। क्लियर। तो यहाँ से डेटा रीड करके वो किस में स्टोर करेगा, आपका डेटा के अंदर। क्लियर। और जो भी डेटा यहाँ पे आ रहा है, जो डेटा की टाइप क्या होगी यहाँ पे, स्ट्रिंग टाइप। क्लियर। नेक्स्ट इज रीड लाइन फंक्शन। रीड लाइन फंक्शन, दिस फंक्शन रीड्स अ लाइन फ्रॉम द फाइल। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ बाइट्स रीड कर रहे थे फाइल से, लेकिन अगर आपको पूरी लाइन रीड करनी, लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है, तो हम एक और फंक्शन आपके पास रीड लाइन, तो ये यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। इसमें सिंटेक्स क्या है, देखो आपका फाइल हैंडल डॉट रीड लाइन, और दिस एन इज़ ऑप्शनल। अगर एन आप मेंशन करोगे तो वो नंबर ऑफ बाइट्स, जैसे रीड में रीड कर रहा है उस टाइप से रीड करेगा, लेकिन अगर आपने विदाउट एनी आर्गुमेंट ब्लैंक दिया है तो उस केस में वो एक पूरी लाइन को रीड करेगा। क्लियर। और इसमें भी डेटा आपका स्ट्रिंग फॉर्म में ही होता है, स्ट्रिंग टाइप में। नेक्स्ट है इसके अंदर देखो रीड लाइन्स। रीड लाइन्स, दिस फंक्शन रीड्स ऑल द लाइन्स एंड रिटर्न दैम इन अ लिस्ट। मीन्स रीड लाइन्स में क्या है कि जो डेटा वो रीड करेगा, सारा डेटा रीड करेगा, सारी लाइन्स रीड करेगा, लेकिन किसमें देगा आपको, इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रीड लाइन एंड रीड लाइन्स। रीड और रीड लाइन के केस में डेटा किस टाइप का रिटर्न हो रहा है आपको, स्ट्रिंग टाइप का, बट इन केस ऑफ रीड लाइन्स द डेटा रिटर्न इज इन लिस्ट फॉर्म, लिस्ट टाइप। क्लियर। सो इसका सिंटेक्स नहीं आ रहा, सिंटेक्स हम सिमिलरली ऐसे ही यूज़ करेंगे, फाइल हैंडल डॉट रीड लाइन्स। अब यहाँ पे रीड लाइन की जगह हम क्या यूज़ कर लेंगे, रीड लाइन्स। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, ये तो आपके फंक्शन से फॉर रीडिंग। नेक्स्ट इज फॉर राइटिंग। राइटिंग के लिए जो फंक्शंस हमने यूज़ किए यहाँ पे, फर्स्ट इज राइट। दिस फंक्शन राइट्स अ स्ट्रिंग टू द फाइल। अब यहाँ पे राइट फंक्शन क्या कर रहा है, वो कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी वैल्यू आप फाइल के अंदर राइट करना चाहते हो तो वो राइट करेगा। सो सिंटेक्स देखो, फाइल हैंडल डॉट राइट, और यहाँ ब्रैकेट में आप पास करोगे वो स्ट्रिंग वैल्यू दैट यू वांट टू राइट इन योर फाइल। एग्जाम्पल देखो, f1 डॉट राइट हेलो फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होगा, इट विल राइट हेलो फ्रेंड्स इनटू द फाइल। तो जो डेटा आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो वो आपका फाइल में राइट हो जाएगा। बट यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, फाइल को जब हम W मोड में ओपन करेंगे तो जो पिछला डेटा होगा फाइल के अंदर आपका, वो आपका ओवरराइट हो चुका होगा। क्लियर। बट अपेंड मोड में अगर आपने फाइल को ओपन किया है then the data will remain there. Next is write lines. Write lines, this function writes a list as lines into the file. अगर आपने sequence of data फाइल के अंदर write करना है तो यहाँ पे हम write lines यूज़ करेंगे। मल्टीपल लाइन्स अगर आप स्टोर करना चाहते हो, राइट करना चाहते हो अपनी फाइल के अंदर। अब यहाँ पे जैसे हमने लिया है फाइल हैंडल डॉट राइट लाइन्स, और ब्रैकेट में आप क्या पास करोगे, लिस्ट, मीन्स लिस्ट ऑफ वैल्यूज दैट यू वांट टू राइट इन योर फाइल। क्लियर। तो दीज आर द टू फंक्शंस विच वी कैन यूज फॉर राइटिंग डेटा इनटू द फाइल। नाउ थर्ड फंक्शन इज ऑल्सो देयर, CSV डॉट राइटर। अब CSV डॉट राइटर किस केस में यूज़ होगा, आपका CSV फाइल्स के केस में। जब एक CSV फाइल के अंदर आपने डेटा को राइट करना है तो वहाँ पे हम CSV मॉड्यूल का राइटर फंक्शन यूज़ करेंगे। क्लियर। इसका सिंटेक्स कैसे है, W इक्वल्स टू CSV डॉट राइटर यूज़ करना है हमें, देन फाइल हैंडल, मीन्स जिस फाइल से आप, जिस फाइल हैंडल जो आपने यूज़ किया है फाइल को ओपन करने के लिए, देन ये छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पे इक्वल्स टू आपने यूज़ नहीं करना, दिस इज़ W डॉट राइट रो। मीन्स अब रो वाइज डेटा अगर हम यहाँ पे राइट करेंगे फाइल के अंदर तो हम
जो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे आपने यूज़ किया है, राइटर फंक्शन जिसमें आपका आया असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे W आप यूज़ करो तो W डॉट राइट रो। क्लियर, ये थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा इसमें। देन रिकॉर्ड टू बी एंटर, फाइल में आपने क्या डेटा एंटर करना है, क्या रिकॉर्ड एंटर करना है, वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। क्लियर, ऐसे इसमें रीडिंग के लिए हमारा CSV डॉट रीडर होता है। नेक्स्ट है इसमें आपका देन ये तो कुछ फंक्शंस थे जो हम अपनी फाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं व्हेन वी आर डीलिंग विद फाइल्स इन पाइथन। नाउ लेट अस सी द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकली प्रोग्राम के अंदर इसको कैसे हमने यूज़ करना है। क्लियर, तो उसके लिए अभी हम इसको हम एक उसमें देखते हैं। लेट्स ओपन पाइथन। एक प्रोग्राम के अंदर हमें कैसे यूज़ करना है इसको। यस, ये कोड एक पहले से लिखा हुआ है आपका CSV फाइल। CSV फाइल में हम कैसे डेटा को रीड या राइट करेंगे। यस, ये मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ इसमें। यस, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम CSV फाइल ले रहे हैं। मेनली अभी CSV फाइल डिस्कस करते हैं, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। CSV फाइल के अंदर डेटा रीड या राइट करने के लिए सबसे पहले आपको एक बिल्ट इन मॉड्यूल है इसका CSV, उसको इंपोर्ट करना होता है अपनी फाइल के अंदर, अपने प्रोग्राम में। क्लियर, सो फॉर इंपोर्टिंग दैट CSV मॉड्यूल वी हैव यूज्ड हियर import CSV. Clear, import statement, then name of that module, that is CSV. Clear, then next step is our opening the file. F1 हमने यूज़ किया, F1 is a file handler. देन ओपन मेथड हम यूज़ करेंगे फाइल को ओपन करने के लिए, और ब्रैकेट में आपने क्या पास करना है, नेम ऑफ द फाइल। जैसे अभी हमारी यहाँ पे एक फाइल है data.csv। क्लियर, ऑलरेडी मैंने फाइल एक बनाई हुई है अपने सिस्टम के ऊपर, तो वही फाइल हमने यूज़ किया data.csv। इसको हम पहले रीडिंग मोड में ओपन करते हैं, सॉरी स्मॉल में आपने यूज़ करना है। तो हमने फाइल को किस में ओपन किया, रीडिंग मोड में। देन रीडिंग मोड में ओपन करने के बाद इसमें अब हमें क्या करना है, डेटा को रीड करना है। फॉर दैट पर्पस यहाँ पे हम एक CSV ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, CSV रीडर। सपोज हमने कोई भी एक आइडेंटिफायर यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, CSV मॉड्यूल का रीडर फंक्शन यूज़ करना है। वो क्या करेगा, आपकी फाइल को रीड करेगा। तो CSV डॉट रीडर, किसको हमें रीड करना है, फाइल कहाँ पे आपकी F1 के अंदर। तो फाइल हैंडलर यहाँ पे आप स्पेसिफाई करोगे। क्लियर, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, CSV मॉड्यूल का रीडर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं फॉर रीडिंग दैट फाइल। अब इसको हमने किसको असाइन कर दिया रीडिंग करके, CSR। क्लियर, अब वन बाय वन इसको हमें डेटा जो हमने रीड करना है उसको हमें उसी फॉर्म में रीड करना है। सपोज अगर डायरेक्टली मैं देती हूँ, देखो प्रिंट CSR, इसको सेव करो, देन विल रन दिस फाइल। ये देखो, जब आप इसको रन कर रहे हो तो ये क्या दे रहा है आपको, CSV रीडर ऑब्जेक्ट, और एट एक आपको एक वैल्यू दे दी इसने। मीन्स अभी हमारी रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। क्लियर, हमें फाइल को रीड करना है। तो रीड करने के लिए, डेटा को प्रॉपरली रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर रीडिंग एवरी लाइन ऑफ द टेक्स्ट, एवरी लाइन ऑफ डेटा, विल यूज़ अ फॉर लूप हेयर।
फॉर लाइन, हर एक लाइन, हर एक रिकॉर्ड हमें रीड करना है। फॉर लाइन इन किस में है डाटा आपका, CSR को हमें रीड करना है, CSR, देन प्रिंट लाइन, क्लियर। सेव दिस फाइल एंड रन। यहाँ पे देखो, ये उस फाइल के अंदर जितना डेटा था आपका, ये यहाँ पे उसने डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। 3434 यही रिकॉर्ड्स होंगे इस फाइल में, इसलिए ये सभी यहाँ पे आ गए, क्लियर। और यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, जो आपका जो भी डेटा यहाँ पे मेंशन कर रहे हो दैट इज़ इन अ लिस्ट फॉर्म, एक कंप्लीट रिकॉर्ड आपको रिटर्न कर रहे हो वो, और एवरी वैल्यू इट इज़ सेपरेटेड बाय कॉमा, क्लियर। CSV फाइल हम यूज़ कर रहे हैं तो हर एक वैल्यू जो है आपकी वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, क्लियर। अब इसके बाद देखो यहाँ पे आपका एक ये ब्लैंक लिस्ट भी शो कर रहा है। ब्लैंक लिस्ट मीन्स ब्लैंक रिकॉर्ड किस लिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रिंट है आपका वो न्यू लाइन करेक्टर यूज़ करता है, मीन्स आफ्टर एवरी प्रिंट द कर्सर इट विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन। और फाइल के अंदर भी जब हमने डेटा को राइट किया होगा तो आफ्टर एवरी रिकॉर्ड वी हैव प्रेस्ड एंटर, तो इसलिए यहाँ पे वो ये यूज़ करा। अब इसको हटाने के लिए हम एक यहाँ पे छोटे से ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि एंड हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, एंड इक्वल्स टू ब्लैंक। इसको अभी हम रन करते हैं। नहीं, अब डेटा आपका एक ही लाइन में आ गया, यहाँ पे हमें एंड नहीं स्पेसिफाई करना है, हम इसको ऐसे ही रखेंगे, क्लियर। ये तो हो गया आपका फाइल के अंदर जो आप डेटा को, फाइल से डेटा को रीड कर रहे हो। बट व्हाट इफ़ वी वांट टू राइट द डेटा इनटू फाइल, हमने फाइल के अंदर डेटा को राइट करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। और इसमें हमने एक मिस्टेक किया, हमने फाइल को क्लोज़ नहीं किया, हमें यहाँ पे फाइल को क्लोज़ भी करना है। ये आपको याद रखना है कि जब भी हमें फाइल को ओपन किया है तो उस फाइल को हमें क्लोज़ भी करना है। इट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस। F1 डॉट क्लोज। अभी यहाँ पे उसने आपको रिज़ल्ट दे दिया, बट कई बार क्या होता है कुछ केसेस में वो आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड नहीं करेगा, जैसे राइटिंग में आपको फाइल को क्लोज़ करना ही पड़ेगा, क्लियर। सो दिस इज़ द रीडिंग फ्रॉम अ CSV फाइल। राइटिंग के लिए हम लिखते हैं, राइटिंग में सेम इंपोर्ट किया आपने CSV मॉड्यूल, फाइल को ओपन किया, लेकिन अब हमारा मोड क्या होगा, दैट इज़ W, बिकॉज वी हैव टू राइट डेटा इनटू द फाइल, W। अब यहाँ पे हम रीडर फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, राइटर, CSV मॉड्यूल का राइटर फंक्शन, क्लियर। इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे राइटर फंक्शन हमने यूज़ किया, तो क्या वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हो, ऑब्जेक्ट CSR। तो अब CSR के अंदर हमने राइट रो करना है, मीन्स वी आर राइटिंग द डेटा रो वाइज। CSR डॉट राइट रो, क्लियर। अब यहाँ पे मैं दे देती हूँ वैल्यूज़ 5, देन कॉमा, देन अमित, कॉमा, देन सपोज 25। ये हमारी एक फ़ाइल है जिसके अंदर रोल नंबर, नेम और मार्क्स यूज हो रहे हैं, क्लियर। ये आपका डेटा राइट हो गया, एक रो हमने एंटर की, Ctrl S, इसको सेव करेंगे। एक यहाँ पे मैसेज दे देते हैं हम, सक्सेसफुल। इस डेटा राइट होने के बाद अगर सक्सेसफुली राइट हो गया है तो आपको ये मैसेज वो रिटर्न करे। व्हाट इज़ द एरर,
राइट रो टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट, 3 गिवन. Okay, let's check this. Right row function 3 given. Okay. यहाँ पे आपने देखा वो एक लिस्ट की फॉर्म में डेटा आपको दे रहा है, तो यहाँ पे हमें लिस्ट ही देनी है. लिस्ट क्यों? क्योंकि पूरा एक रिकॉर्ड आप एंटर कर रहे हो. क्लियर? इसको सेव करो और इसको रन करो. यस, मैसेज आ गया आपका, डेटा रिटर्न सक्सेसफुली. इट मीन्स डेटा फाइल के अंदर राइट हो चुका है आपका. क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा कि रीडिंग के लिए आपने CSV मॉड्यूल का रीडर फंक्शन यूज़ करना है और राइटिंग के लिए राइटर फंक्शन. क्लियर? उसके बाद फिर राइट रो हम यूज़ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ टू एंटर द डेटा रो वाइज. क्लियर? सो दिस इज़ द रीडिंग एंड राइटिंग विद CSV फाइल. अब नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं जो आपकी टेक्स्ट फाइल है या बाइनरी फाइल है, उसमें हम कैसे यूज़ करते हैं. अब CSV के केस में हमने CSV मॉड्यूल इंपोर्ट किया था, बट बाइनरी के लिए या टेक्स्ट फाइल के लिए आपको कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. क्लियर? यहाँ से डायरेक्टली हम लेंगे F1 ऑब्जेक्ट आपने लिया, ओपन मेथड यूज़ किया और हमारी एक फ़ाइल हमने ली है. फाइल है हमारी abc.txt. तो यहाँ पे हम वो फाइल का नेम मेंशन करेंगे. अब CSV फाइल नहीं है तो एक्सटेंशन हम वो यूज़ नहीं करेंगे, हम टेक्स्ट फाइल ले रहे हैं अभी हम abc.txt. क्लियर? और इसे हमें ओपन करना है रीडिंग मोड में. ये हम हटा देते हैं CSV का फॉर्मेट. क्लियर? और फाइल को हमने क्लोज कर लिया. मीन्स इन बिटवीन ओपन और क्लोज के बीच में ही आपका सारा ऑपरेशन होगा. ठीक है, ये दिया आपने. अब मुझे डेटा को रीड करना है, तो हम एक रीड फंक्शन ले लेते हैं. x इक्वल्स टू x हमने लिया है ताकि जो डेटा रिटर्न हो आपका उस पर्टिकुलर फंक्शन पे, तो वो हमारा x में स्टोर होगा. अब फाइल हैंडलर क्या है आपका F1. इससे हम रीड फंक्शन यूज़ करेंगे. सपोज़ मुझे 10 बाइट्स रीड करनी है उस फाइल की. क्लियर? ये हमने रीड की और हम प्रिंट करा लेते हैं x को जो हमने रीड किया है. Ctrl+S. और इस फाइल को अगर आप रन करोगे तो यहाँ पे आपको देखो 10 बाइट्स उसने रिटर्न कर दी. VRs2 जो भी वहाँ पे लिखा हुआ था उसका फर्स्ट 10 बाइट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो इट विल रिटर्न यू फर्स्ट 10 बाइट्स. क्लियर? नेक्स्ट देखो, इसमें अगर आप इस फंक्शन को एक बार और देते हैं, सपोज मैंने y इक्वल्स टू F1 डॉट रीड और मुझे अब नेक्स्ट 5 बाइट्स चाहिए. ठीक है, तो जहाँ वो 10 पे उसने ख़त्म किया है उससे नेक्स्ट 11th बाइट से वो स्टार्ट होगा. इसको हम प्रिंट भी करा लेते हैं. y के अंदर हमने लिया है तो प्रिंट y. सेव करो इसको, देन रन दिस. VRs2 डाइंग, ये फर्स्ट 10 बाइट्स. देन नेक्स्ट टू डाइंग थे, स्टडिंग वर्ड था तो उसने फर्स्ट 10 यहाँ पे रीड किए. देन नेक्स्ट लाइन में डाइंग 5 बाइट 1 2 3 4 5. क्लियर? अब हम देखते हैं हमारी फाइल में एक्चुअल डेटा है क्या वहाँ पे, वो हम एक बार चेक कर लेते हैं. फाइल ये आपकी नोटपैड की फ़ाइल है जिसके अंदर लिखा हुआ है वी आर स्टडिंग डेटा इन फाइल हैंडलिंग टुडे. क्लियर? तो उसने यहाँ से कर्सर स्टार्टिंग से आपका स्टार्ट हुआ, पहले फर्स्ट 10 बाइट स्टार्ट रीड की उसने. जब आपने दोबारा रीड फंक्शन यूज़ किया तो ये स्टार्टिंग से नहीं होगा, फिर जहाँ तक आपने रीड कर लिया है उसके आगे से वो स्टार्ट होगा. क्लियर? तो यहाँ पे हम इस टाइप से अपनी फ़ाइल के अंदर डेटा को
रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो इसके अंदर ये तो हो गया हमारा रीड। अगर आप रीड लाइन यूज़ करते हो, सपोज इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, अभी हम एक ही वेरिएबल से यूज़ करते हैं। रीड लाइन, रीड लाइन अगर आप लोगे, अगर आप ब्रैकेट में आर्गुमेंट पास करते हो तो यहाँ पे वो जैसे रीड में उसने 10 बाइट्स रिटर्न की थी, सिमिलरली उसी टाइप से आपको रिटर्न करेगा। बट अभी हमें पूरी लाइन को रीड करना है, फर्स्ट लाइन को, तो हम इसको ऐसे ही रन करते हैं। देखो फर्स्ट लाइन, एक ही लाइन है हमारी फाइल में, वी आर स्टडिंग डेटा फाइल हैंडलिंग टुडे, तो उसने आपको वो रिटर्न कर दिया। क्लियर, फर्स्ट लाइन। रीड लाइंस के केस में क्या होगा, अब देखो यहाँ पे अगर हम इसकी टाइप चेक करें, प्रिंट टाइप ऑफ एक्स, तो ये किस टाइप का डेटा है आपका, स्ट्रिंग टाइप का डेटा। इसको रन करो, सी हियर क्लास str, तो वो जो ये जो प्रिंट कर रहे हो आप डेटा किस टाइप का है, इट इज़ स्ट्रिंग टाइप डेटा। क्लियर। अब इसमें हम रीड करते हैं थर्ड फंक्शन, रीड लाइंस। रीड लाइंस अगर आपने यूज़ किया है, ठीक है, एक्स में लिया हमने इसको, प्रिंट एक्स, और उसके टाइप भी हम मेंशन करा देते हैं, सेम है। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे फंक्शन का नेम चेंज किया है। इसको अभी हम रन करते हैं। सो सी द डिफरेंस बिटवीन द टू आउटपुट्स। फर्स्ट केस में आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा था, बट यहाँ पे जो आपको रिटर्न कर रहा है दैट इज़ अ लिस्ट डेटा, इट इज़ एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्लियर। और ये फर्स्ट लाइन है आपकी, तो एक ही एलिमेंट इसका बना है। अगर आपकी 2-3 लाइन्स होती तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं आपके, तो वहाँ पे हमने एंटर भी प्रेस किया था, तो दैट इज़ ऑल्सो /n, ये एंड में यूज़ कर रहा है, बता रहा है आपको। यहाँ पे देखो ये डेटा किस टाइप का आपका, इट इज़ लिस्ट टाइप ऑफ डेटा। फर्स्ट के रीड या रीड लाइन में क्या था आपका, स्ट्रिंग टाइप का डेटा, और यहाँ पे आपका क्या है, लिस्ट टाइप का डेटा। क्लियर। सो आई होप ये इसका txt फाइल में रीडिंग मोड आपको क्लियर होगा। फटाफट एक राइटिंग मोड देख लेते हैं। इफ़ यू वांट टू ओपन द फाइल इन राइटिंग मोड, राइटिंग मोड के लिए हमारे पास फंक्शन था राइट और राइट लाइन्स। F1 है हमारा फाइल हैंडलर, F1 डॉट राइट, राइट देखते हैं पहले, हेलो फ्रेंड्स। क्लियर, ये मैंने दिया यहाँ पे। फाइल को हमें क्लोज करना है, यहाँ पे मैं प्रिंट करा देती हूँ, मैसेज दे देती हूँ, डेटा रिटर्न सक्सेसफुली। क्लियर, इसको हम सेव करते हैं और इसको हम रन करते हैं, फिर अपनी फाइल में भी हम चेक करेंगे। तो आपको मैसेज दे दिया उसने, डेटा रिटर्न सक्सेसफुली, इट मीन्स फाइल के अंदर जो डेटा है आपका वो राइट हो चुका है। अभी हम फाइल देखते हैं, फाइल कैसे शो हो रही है आपकी। इसको हम दोबारा ओपन करते हैं। इस फाइल के अंदर पहला डेटा जो था वो आपका ओवरराइट हो चुका है, और उसमें आपका नया डेटा उसने रिटर्न कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट है इसके अंदर देखो, दिस इज राइट मोड। क्लियर। तो ये आपका रीडिंग और राइटिंग कैसे करनी है आपने टेक्स्ट फाइल के अंदर, वो हमने चेक किया।
राइट लाइंस भी अगर आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे आप राइट लाइंस भी यूज़ कर सकते हो। इसको भी सेम उसी टाइप से यूज़ करेंगे हम। F1 डॉट राइट लाइंस, ठीक है। और यहाँ पे हम एक लिस्ट टाइप का डेटा भी मेंशन कर सकते हैं, मीन जब आपने सीक्वेंस देना है। और इसको आपने फाइल को सेव करो और इसको आप रन करो। डेटा रिटर्न सक्सेसफुल, इट मीन्स डेटा राइट हो चुका है। फाइल के अंदर आपने इसको रिफ्रेश करना है। फाइल आप क्लोज करके दोबारा ओपन करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब आप सेम ओपन फाइल में हम देखते हैं तो वहाँ पे आपको वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं करता। क्लियर? तो ये आ गया आपका हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। क्लियर? सो यहाँ पे हमने हाउ टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा को कैसे राइट किया। जब अगर आपने राइट मोड यूज़ किया है तो इसमें राइट लाइंस या राइट फंक्शन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप अपेंड मोड यूज़ करते हैं तो वो क्या करेगा, जो डेटा आपका ऑलरेडी फाइल के अंदर है उसको एज इट इज़ रखेगा और उस डेटा के एंड में आपका डेटा एंटर हो जाएगा। क्लियर? तो अभी इसमें हमने डिस्कस किया कि हम टेक्स्ट फाइल के अंदर या CSV फाइल के अंदर डेटा को कैसे रीड और राइट कर सकते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ओके, थैंक यू।